aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 12th October 2021. So let's start today's discussion. The first article states that Modi to attend G20 virtual meeting on Afghanistan. So now from this article we'll study or we'll get to know about G20. What is G20? How is it different from the other? We have heard of G7, G8. Okay. So first we'll see the article. What is this article speaking about? When is the meeting? And then we'll go to the particular topic of G20. So G20 means a group of 20 countries. Whenever you heard of G7, G8, so that is a group of 7 countries, a group of 8 countries, similarly a group of 20 countries. Okay. So it is likely to deliberate on political and humanitarian issues. Now, if it is speaking of Afghanistan, obviously it's speaking about the issues that are happening in Afghanistan currently. Okay. So we'll know the article. Prime Minister Narendra Modi will attend an extraordinary virtual meeting with the leaders of G20 on Afghanistan, that is on today, 12th October. Mr. Modi had urged the international communities to carefully act on the recognition of Taliban as a legislation rulers. Okay, so ahead of the meeting, so Mr. Modi had urged the international community to carefully act on the recognition of Taliban as a legislative rulers of Afghanistan. As we know, 15 August के बाद से Taliban has become a legitimate ruler of Afghanistan. Secondly, ahead of the meeting, External Affairs Minister Mr. S. Jaishankar and Minister of State Mrs. Meenakshi Lehi reminded the world about the multilateral norms and that have been set in the place of Afghan crisis. Now, talking about this article in a summary, it is basically speaking the role that this G20 will play in context of Afghanistan. How should they take Afghanistan as a legitimate ruler or as a intentional or deliberate ruler? So on that discussion is being taken today. Second thing, another discussion on Afghanistan was taken by our external minister Mr. Jaishankar in Bishkek. It is a particular place. And secondly, Italy holds a talk. So currently, if you will know, G20 का जो chairperson country है G20 का, that is Italy currently. So the current chair of G20 is Italy, has discussed the situations in Kabul and other cities of Afghanistan with the world power in like Russia, China. Prime Minister Mario Draghi observed in September last week that immediate aim of the world community to ensure human lives were saved in the country. Therefore, it is likely to be a political and humanitarian. So humanitarian बोलने का reason क्या है? To save the lives of Afghanistan. कैसे हम उनके लिए काम कर सके. So उसी context में ये meeting आज हो रही है. So let's see इस meeting का क्या results आता है. अब हम क्या पढ़ेंगे? We'll know about G20. Now looking at this figure, आपको क्लियरली समझा होगा. G7 में जो है सिर्फ ये 7 कंट्रीज आते हैं. जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान. इसी में अगर आप सिर्फ रशिया ऐड कर दोगे, इट विल बी G8. और इसमें ही अगर बाकी की ये 12 कंट्रीज यू विल ऐड, इट विल बिकम G20. तो कभी कभी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G7 एंड ऐसे कुछ स्टेटमेंट आपको दे देंगे. प्लीज रिमेंबर, कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में इंडिया सिर्फ G20 का मेंबर है, ना ही G8 एंड ना ही G7 का. सो G20 में कौन से आ जाते हैं? दैट इज टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. सो ये 12 कंट्रीज मिलकर हमारे G20 बनते हैं. ये साल G20 का चेयरपर्सन जो कंट्री है दैट इज इटली. अभी की जो करंट डिस्कशन होने वाली है दैट इज ऑन द कंडीशंस ऑफ कंडीशंस ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है. सो G20 कैसा है? इट इज अ प्रॉपर फॉर्मल ग्रुप ऑफ 19+1 यूनियन. 19+1 क्यों मैं बोलूँगी? बिकॉज 19 आर कंट्रीज और एक जो है वो हमारा यूरोपियन यूनियन होता है, यूरोपियन यूनियन. सो देयरफॉर इट इज अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19+1
वन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, इसमें और कौन रिप्रेजेंटेटिव है? सो हमारा IMF और वर्ल्ड बैंक। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे G20 में। ये कुछ चीज़ें स्टेटमेंट आपको इजीली याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट इसको भी देख के पूछ सकते हैं आपको। सो इकोनॉमी बेसिस पे बात करें, वर्ल्ड की बेसिस पे बात करें, G20 कंप्राइजेज ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस इमर्जिंग इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। चाइना हो गया, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, US, UK, कनाडा। सो इट हैज़ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें वर्ल्ड्स 2/3 पॉपुलेशन मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके। देन इकोनॉमी के हिसाब से बात करें तो ग्रॉस ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो GDP वर्ल्ड का 85 ये पूरी कंट्रीज करते हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ ग्लोबल ट्रेड की बात, तो 75% ऑफ ट्रेड जो है ये 20 कंट्रीज से होता है। सो जस्ट इमेजिन 195 कंट्रीज में से 20% मेन ट्रेड इनके तरफ से होता है, 75%, and investment is about 80%, and therefore it is said कि G20 has the largest emerging economy of the world, countries ऐसे उसमें constitute है। अब इसकी origin की अगर हम बात करें कि how did this G20 emerge, तो actually 1997 से 1999 तक के बीच में there was an Asian financial crisis, ठीक है, जिसमें कि उस टाइम पर जो हमारा G7 है उन लोग ने कुछ डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज को इनवाइट किया सो दैट ये फाइनेंशियल क्राइसिस के रिलेटेड वो लोग डिस्कशंस कर पाए विद द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो G7 ने ऐसे इमर्जिंग कंट्रीज, डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज को इनवाइट किया सो दैट दे कैन टॉक अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट द एशियन कंट्रीज इज फेसिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, सो प्रॉपर इनका डिस्कशन 1999 में हुआ, ठीक है, 1999 में उस पर डिस्कशन हुआ। देन आफ्टर 2018 फाइनेंशियल क्राइसिस अगेन दे सॉ कि एक नई पॉलिटिकल लेवल ग्रुप इमर्ज हो रही है, क्योंकि दिस 20 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस जब भी होता था, ठीक है। एंड सो टू हेल्प दी समिट्स G20 मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नर्स कंटिन्यू करते रहे अपनी मीटिंग। फाइनेंशियल हेल्प होने के लिए सारी ही G20 कंट्रीज साल में 2 साल में एक बार तो ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार तो इनकी मीटिंग्स होती ही थी टू डिस्कस द फाइनेंशियल क्राइसिस या जो भी इमर्जिंग सिचुएशंस है। एंड देयरफॉर उसके बाद से उनको फिर IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट किया उसी टाइम से, एंड देन इट स्टार्टेड इट्स वर्किंग एज अ G20, ठीक है। सो कहीं ना कहीं G20 का ओरिजिन क्यों हुआ? इट वॉज ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट एशियन कंट्रीज वर फेसिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। सो G20 का वर्किंग हैपन इन 2 डिफरेंट वे। वन इज द फाइनेंशियल ट्रैक, 2 ट्रैक्स में हम देखते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा होता है शर्पा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक बाय द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड कि सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और उनकी जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, साल में जितने भी मॉनेटरी और फिस्कल इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल रेगुलेशंस होंगे, उसको लेकर जो डिस्कशन है वो फाइनेंशियल ट्रैक में होगा। शर्पा ट्रैक जो है वो बेसिकली बॉर्डर इश्यूज हो गए, करप्शन, एंटी करप्शन, देन डेवलपमेंट, एनर्जी। सो फाइनेंशियल को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें हैं वो शर्पा ट्रैक्स में इन्वॉल्व होते हैं। सो G20 वर्क्स ऑन 2 डिफरेंट ट्रैक्स, ओके। सो ये शर्पा क्या है? तो शर्पा इज बेसिकली हम बोल सकते हैं एक हेड हो सकता है जो प्लान करता है, जो गाइड करता है इनको, हु वी कैन से इज अ लीडर। जैसे ये साल कौन है हमारा? तो इटली इज द शर्पा ऑफ G20 करंट दिस ईयर। सो शर्पा जो है इट बिहेव्स एज अ लीडर ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, ओके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ G20 जो हुआ था 2018 में G20 के जो शर्पा थे वो इंडिया के पर्सन थे जिनका नाम था शांतिकांता दास। सो शर्पा जो है वो कंफ्यूज मत होना, इट मीन्स अ लीडर हु बिहेव्स एज अ लीडर ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री। सो 2 ट्रैक्स में इनको होता है। G20 में कितने कंट्रीज है मैंने आपको दिखा दिया, इसी तरीके से आप याद रख सकते हो क्या डिफरेंस है G7, G8 एंड G20 में।
स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी प्रेसिडेंसी जो है, G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो कंटिन्यूसली रोटेट होती है, एनुअली हर साल रोटेट होती है, ताकि किधर भी रीजनल इम्बैलेंस ना हो, सबको मौका मिले टू बी द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंसी. एंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी द 19 कंट्रीज आर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स. ठीक है, दिस 19 कंट्रीज आर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स, ईच हैविंग नॉट मोर देन 4 कंट्रीज. तो मतलब अगर आप कंसिडर कर लो, एक ग्रुप में ये 4 हैं, देन एक ग्रुप में ये 4 हो गए, एक ग्रुप में ये 4 हो गए, ये एक ग्रुप में हम कंसिडर करते हैं ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, ऐसे करके इनको डिवाइड. यूरोपियन यूनियन नहीं रहता है, 4 मेंबर से ज़्यादा जो है किसी भी ग्रुप में नहीं होंगे. ऐसे 5 ग्रुप्स होते हैं और उसी ग्रुप में प्रॉपर प्रेसिडेंसी पहले शिफ्ट होती है उस ग्रुप में, देन वो सेकेंड ग्रुप के पास जाएगी. ठीक है, इंडिया जो है वो ऐसे सेकेंड ग्रुप में आता है. तो इंडिया के साथ कौन कौन है? इंडिया के साथ टर्की है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है. ये 4 कंट्रीज मिलकर सेकेंड ग्रुप बनाते हैं G20 का. सो G20 डजंट हैज़ एनी परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर. इंस्टेड उसके जगह पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है एनुअली उस साल का, वो G20 के एजेंडाज और सब जो उस साल का डेवलप करता है. सो बी रिमेंबर, अगर ये चीज़ पूछा कि G20 हैज़ अ परमानेंट प्रेसिडेंसी और भी परमानेंट सेक्रेटरी, तो नो, क्योंकि G20 एक इनफॉर्मल मीटिंग है ऑफ दिस 19 कंट्रीज विद यूरोपियन यूनियन. चलो ये चीज़ क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज ट्रॉइकिया. ठीक है, अब ट्रॉइकिया क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. TROIKA. TROIK बेसिकली क्या होता है, हर साल जो है एक नई कंट्री को प्रेसिडेंसी दी जाती है, जो कि वो प्रीवियस ईयर का जो थे और जो नेक्स्ट है वो कलेक्टिवली साथ में काम करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर 2018 में इंडिया के हाथ में प्रेसिडेंसी थी, तो 2017 में जिसके हाथ में थी और 2019 में जिसके हाथ में होगी, ये तीनों ही कंट्रीज साथ में डिसाइड करते हैं कि ये साल क्या इश्यूज डिसाइड होगा. क्योंकि 2017 को आप अगर कंसिडर करोगे तो 2017 जो कंट्री को उसको ज़्यादा पता होगा, बिकॉज वो एक साल उस पोजीशन को संभाला है. 2019 को क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि उसके हाथ में नेक्स्ट ईयर आएगा, तो ही और द कंट्री कैन वर्क मोर एफिशिएंटली ऑन दैट थिंग. सो ट्रॉइका जो टर्म है, इट इज़ बेसिकली 3 कंट्रीज जो है साथ में आके ग्रुप एजेंडाज डिस्कस करते हैं कि ये साल हम क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कशंस करेंगे. ठीक है, ओके. सो G20 ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज पर डिस्कस करता है, इट डिस्कस ऑल द मेजर एजेंडाज दैट हैपन्स इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मार्केट, टैक्स, फिस्कल पॉलिसीज, देन ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, क्लाइमेटिक चेंज, एंटी करप्शन, टेररिज्म, ये सभी चीज़ों को लेकर वो डिस्कस करता है. ठीक है, सो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है. G20 का कहीं ना कहीं बोलते हैं कि G20 हैज़ वर्कड वेरी सक्सेसफुल बीइंग अ ग्रुप. वाई इट इज़ सेड सो? बिकॉज ये इसके लिए बोला जाता है बिकॉज उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है. इट इंक्लूड्स, और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है G20 के मेंबर्स के बीच में. एंड देयरफॉर इट इज़ सेड कि G20 इज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप, इट वर्क्स वेरी सक्सेसफुली. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए G20 के पर्सपेक्टिव से. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. दिल्ली गवर्नमेंट ने अगेन अपने उस स्टेट के बच्चों के लिए एक नया स्कीम लाया है विच इज स्टेटेड एज देश के मेंटर. ठीक है, देश के मेंटर की अगर मैं बात करूं, सो देश के मेंटर टू गाइड गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रंस टू करियर चॉइस. नाउ इट इज स्टेटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट दैट एट द एज और एट द व्हेन द चाइल्ड इज इन 11th क्लास. ठीक है, सॉरी, when the child is in 11th class, usually the child is in such a stage, I think so at the age of 16. So at that time the child faces emotional, physical pressures by the peer group or by any of the reason. So at that time a child needs a support, a place where the child can relax or be happy for a moment, and जिसकी वजह से चाइल्ड देश के मेंटर वाली स्कीम इन्होंने लाई है. ना आपको क्या याद रखना है, देश के मेंटर किसके लिए है? आपको दे देंगे कि 6 से 14 के चाइल्ड के लिए है या बड़े बच्चों के लिए है. सो यू शुड रिमेंबर इट इज़ फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स. ठीक है, दे विल बी मेंटर्ड बाय द पीपल हु आर सक्सेसफुल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, ताकि करियर को लेकर वो लोग को थोड़ा मौका मिल सके सोचने, क्योंकि 16, 17, 18 इज सच अ ईयर व्हेन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम. ठीक है, सो यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, अ प्रॉपर वी कैन से knowledge about every field so that you can understand कि हाँ this field is for me and this is not for me. So Delhi government on Monday launched the mentorship program for children studying in class 9th to 11 in its school. So
9 से लेके 11 तक के बच्चों के बीच में ये होने वाला है। सो 9th 10th 11 ये 3 साल के जो स्टूडेंट्स होंगे, 9th 10th 11, ये तीनों ही क्लासों को ये गाइडेंस या फिर ये देश के मेंटर स्कीम की फैसिलिटी मिलेगी। सो under Desh Ke Mentor program, students will be monitored by the volunteers from across the countries for every day 10 to 15 minutes daily on the issues ranging for the career choices and teenage related concerns. क्यों, ये भी हम देखते हैं। नो जजमेंटल गाइड क्यों दिया है इसमें? इट इज़ बिकॉज स्पीकिंग ऑफ द रीजन फॉर स्टार्टिंग सच अ प्रोग्राम, मिस्टर केजरीवाल सेड व्हेन द चिल्ड्रन reaches the class 9th, they develop various several emotional and physical needs that they have to deal with lot of pressure from peer, family, siblings and studies for choosing the career. So we want children to get a non-judgmental helping hand and guiding light, someone with whom the child can talk without any inabilities. Like जैसे कि यूजुअली वी सी देर आर टू टाइप ऑफ चिल्ड्रन हु कैन स्पीक वेरी वेल और या कुछ बोलते नहीं हैं। सो सम ऑफ द चिल्ड्रन नीड समवन जिनसे वो फ्रीली बात कर पाए, अपनी इश्यूज बता पाए, एंड देयरफॉर ये स्कीम लाए ताकि वो लोग ओपन माइंडली थोड़ी देर फ्रेश हो पाए एंड दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन रियलाइज व्हाट फ्यूचर दे वांट, व्हाट आर द प्रेशर्स, हाउ दे आर हैंडलिंग, उसको कैसे वो लोग सॉल्व कर पाएंगे आगे। So, the government is encouraging people from the age of 18 to 35, age of 18 to 35 years across the countries to join the initiative, so that by registering on the app developed by the purpose, in our families we see elders, brother, sister guide their younger child siblings. If we replicate the same model on national level, the whole country will become a big family. क्योंकि सब जगह पे you won't get a sibling or elder brother or sister or younger brother or sister. So we need such a program which can help some people also who don't have any siblings. So because having the people who don't have sibling, they sometimes are misguided or they don't know what to do in the future life. So in that perspective he stated कि एक बड़ी family बन पाएगी country में अगर हम इसको large national level पे constitute कर पाए। Deputy Chief Minister Manish Sisodia said the students class from 9 to 11 need to decide what they should pursue in future during this time. If someone holds the hand without judging them and imposing their dreams on them, it will be result between decision making. Obviously ये एज में ऐसा रहता है कि कई कई जगह पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि यू हैव टू चूज दिस फील्ड, जैसे कि बहुत बार ऐसे देखा है कि बिकॉज ऑफ पेरेंट्स प्रेशर दे आर टेकिंग MBBS, दे आर टेकिंग इंजीनियरिंग, जबकि उसको कुछ और लेना है। वेरएज कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि देखिए फ्री हैंड की, ठीक है जो लेना है लो। सो दिस इज अ वेरी वी कैन से सेंसिटिव एजेस ऑफ द चाइल्ड where the child needs utmost care and nurturing, ठीक है। सो देयरफॉर दिस स्कीम इज बीन ब्रॉट। अब ये स्कीम में क्या याद रखना है? देश के मेंटर इज फॉर चिल्ड्रंस फ्रॉम 9 to 11th। दूसरी चीज़ कहाँ पर आई है? दिल्ली में हुआ है। कैसे होगा? रोज़ 10 to 15 मिनट्स होने वाला है। वॉलंटियर्स उनको गाइड करेंगे जो अपने अपने एक फील्ड में नोन है, ठीक है, सो दैट दे कैन रिलीज द प्रेशर, दे कैन नो कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड दे कैन डिसाइड ईजीली, ठीक है। सो ये आर्टिकल क्लियर हो गया। करियर चॉइसिंग के लिए देश के मेंटर का स्कीम लाया गया है, प्लान लाया गया है दिल्ली में टू वर्क ऑन इट। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल सेज DOT TRAI working on optimal use of spectrum. Talking of the background of this article, it is basically speaking the regulating board, the board which regulates the network, or we can say the telecom networks, is speaking that there is a need. Telecom regulating authority of India is speaking that we need a proper spectrum, a proper range of frequency, so that we can upgrade the 5G networks or the networks of India. उस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये चीज़ बात की है। इसमें ये भी बोला है कि वी नीड प्रॉपर सच पॉलिसीज सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, एंड इफ वी हैव प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वी कैन वर्क ऑन इट मोर बेनिफिशियली। ओके, सो फर्स्ट विल नो अबाउट द आर्टिकल। आर्टिकल में क्या चीज़ बताया है, एंड आर्टिकल के बाद हम फिर ये जो बॉडी है हमारा, जो नेटवर्क के इस पे काम करता है, उसके बारे में जानने की थोड़ी सी जानेंगे, क्या बॉडी है, कैसी वर्किंग है, एंड ऑल्सो ओके। सो
The telecom ministry is engaged in the discussions with the regulating TRI, that is telecom, मतलब ये किसके अंडर वर्क करता है वो भी आपको याद रखना है. तो ये वर्क करता है हमारा टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंडर. कोई लोग ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बोल देंगे, कोई लोग कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री बोल देंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री बोल देंगे, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री बोल देंगे. तो दैट इज टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर वर्किंग करता है. क्या डिमांड कर रहा है? तो डिमांड ऑफ सैटेलाइट बेस्ड टेरिस्टोरियल टेलीकॉम सर्विसेज विच हैज़ द डिमांड्स ऑफ सी बैंड स्पेक्ट्रम एंड के बैंड स्पेक्ट्रम. फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो नेटवर्क्स होते हैं 5G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, वो हमारे बैंड पे होते हैं. फ्रीक्वेंसी कितने दूर तक जा रही है, ठीक है. तो उन्होंने बोला है कि इनको ऐसे सैटेलाइट्स चाहिए होंगे टेरिस्टोरियल लैंड वाले जो कि इनको के बैंड और सी बैंड तक का फैसिलिटी दे पाए, सो दैट दे कैन इम्प्रूव दियर नेटवर्क्स. स्पीकिंग एट द इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यूली फॉर्म्ड इंडस्ट्री body Indian Space Association, the secretary added that since spectrum is in finite resource, its value can be augmented. सो इन्वेस्टमेंट नीडेड में यही बताया है कि वी नीड सच पॉलिसीज, इंडिया नीड सच पॉलिसीज दैट कैन अट्रैक्ट मोर ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड वी कैन इम्प्रूव द स्पेक्ट्रम, वी कैन इम्प्रूव द फ्रीक्वेंसी सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर नेटवर्क्स, 5G नेटवर्क्स, 4G नेटवर्क्स इन एवरी एरिया. ठीक है. सो इसमें आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. मैंने ये आर्टिकल इसके लिए लिया ताकि यू कैन नो अबाउट दी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम टेराई भी बोलते हैं. तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें, सो इट वाज इस्टेब्लिश इन 1997. हमारा एक प्रॉपर एक्ट है, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ एक्ट 1997 के अंडर ये बॉडी एक इस्टेब्लिश की गई थी. ठीक है. सो व्हाई इट वाज इस्टेब्लिश? टू क्रिएट अ कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया. Okay, so it regulates telecom services like revision of tariff of telecom services, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सभी तरह के टेलीकॉम के काम इनके अंडर किए जाते हैं, so that we can provide a fair and transparent policy services environment, सबको उसकी फैसिलिटी मिल पाए. ठीक है. हेडक्वार्टर अगर बात करें अगेन सेंट्रल लेवल पर है, तो ऑब्वियसली हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इज इट्स हेडक्वार्टर. सेकेंड थिंग, इसके जो चेयरपर्सन है 2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. सो 2 फुल टाइम मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स इसके मेंबर होते हैं. टेन्योर ऑफ द मेंबर कैसे होता है? तो चेयरमैन है और जो अदर मेंबर्स हैं वो 3 साल या फिर 65 ईयर्स. सो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट दे सकते हैं 3 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, दोनों में से जो चीज़ पहले होगी उस पर उनका टेन्योर खत्म होगा. ठीक है. और चेयरपर्सन जो हैं वो वहाँ के जर्नल सुप्रिटेंडेंट्स होंगे. ठीक है. सो ही और शी कैन प्रिसाइड द मीटिंग्स ऑफ TRAI. सो दैट इज द जनरल सुप्रिटेंडेंट जो उनकी हेड बॉडी होगी. सो चेयरपर्सन के अंडर होंगे नेक्स्ट वाइस चेयरपर्सन. वाइस चेयरपर्सन अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि पावर डिस्चार्ज, अगर चेयरमैन की एब्सेंस में जो काम, जैसे यूजुअली वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, जब प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग बॉडी बनती है. सिमिलरली अगर यहाँ की चेयरमैन नहीं हुए तो वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे एक्टिंग बॉडी बनती है उनके जगह पर. इनका रिमूवल जो है वो अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनका रिमूवल करेंगे अगर उनको पता चला कि कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऑफेंस कर रहे हैं ये लोग, मेंटली अगर दे आर इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग और अब्यूज़, और या फिर अपने पोजीशन को अब्यूसिव वे में अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है. ठीक है. सो इनकी पर्टिकुलर मीटिंग्स होती है जिसकी प्रेसिडेंसी जो है या जिसकी प्रिसाइडेड होते हैं हमारे चेयरपर्सन, जो उसको प्रिसाइड करते हैं. चेयरपर्सन नहीं तो वाइस चेयरपर्सन करते हैं. और मेजॉरिटी वोट्स, मतलब कोई भी मीटिंग का डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी वोट्स जितने लोग प्रेजेंट है उस पर होता है. देन फंक्शंस क्या है? तो किसी भी तरह के रिकमेंडेशंस टेलीकम्युनिकेशन को लेके वो कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये बॉडी ये काम करेगा, ये बॉडी को ये काम करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है. ठीक है. मतलब अगर इन्होंने कोई डिसीजन दिया, कोई सजेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेगा ही लेगा. दैट इज़ नॉट कंपल्सरी. ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है. इस बॉडी में रिसेंटली भी 2020 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, तो वो अमेंडमेंट चेक करके आप मुझे बताइए 2020 में क्या अमेंडमेंट आए हैं अबाउट दिस टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
ठीक है। सो ये आर्टिकल आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट आर्टिकल जो है हमारा नेचुरल बाउंड्री को लेके बात किया है, प्रोटेक्टिंग द नेचुरल लैबोरेटरीज, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पीकिंग क्या, लोगों के अंदर इंडिया को लेकर, जैसे इंडिया में वी हैव अ वेराइटी ऑफ कल्चर, सिमिलरली इंडिया में वी हैव जियो पॉलिटिकल रीजन्स। इंडिया में आपको ठंडी से लेके रेगिस्तान मिलेगा, ज़्यादा बारिश कम बारिश भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे, प्लेन एरियाज भी मिलेंगे, ठीक है, वॉल्केनिक्स भी थे अभी। तो बेसिकली इसके बारे में अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो आप मुझे बताएंगे इसमें कि इंडिया का ओरिजिनल पोजीशन कहाँ था 100 मिलियन पहले, इंडिया एग्जैक्टली पहले कहाँ रहता था, क्योंकि 100 मिलियन के बाद शिफ्ट होते होते इंडिया जो है वो साउथ एशिया का पार्ट बना है। पहले इंडिया की पोजीशन नहीं थी, वो चीज़ आप मुझे बताएंगे। दूसरी चीज़ अगर इसमें क्या बताया कि इंडिया के लोगों के अंदर लिटरेसी होनी चाहिए। तो अगर लोगों के अंदर लिटरेसी नहीं है कि इंडिया में क्या क्या वेराइटी है, तो वो लोग उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यू कैन हैव अ प्रॉपर आंसर राइटिंग ऑन दिस, राइटिंग अबाउट द जियोपॉलिटिकल वेराइटी ऑफ इंडियाज रीजन, ठीक है। सो यू कैन पुट अ PDF में, अगर आप चाहे तो मैं आपको चेक करके भी बता दूंगी कि क्या सही है क्या गलत है। सो यू शुड नो अबाउट द नेचुरल बाउंड्री ऑफ इंडिया, क्या क्या चीज़ इंडिया में कंसिडर करती है, ओके। सो इसके बारे में आप पढ़ेंगे ना, आप मुझे PDF में आंसर राइटिंग के थ्रू बताएंगे। आई होप सो इसके आपको आज का आर्टिकल क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।